Good morning, students. Last week we did chapter number 4, that is heat, and then we discussed different questions related to that chapter, and I'm very happy that you have given a very good response. Today we will start chapter number 5, that is acids, bases and salts. So acids, bases and salts, this chapter is related to the different types of acids, bases and salts which we use in our daily life, everyday life, है ना. We come across different acids, different bases and different salts which are very nutritious and they are very beneficial in one way or other. Now see first page. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar, है ना. हम रोज़ लेमन यूज़ करते हैं, टैमरिंड इमली भी यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर. तो क्या सबका टेस्ट सेम होता है? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. So in table 5.1, a list of substances has been given, and what you have to write कि उसका टेस्ट कैसा होता है, that you will have to write against it. Okay, so they are edible things, that's why we are saying that you can taste it. लेकिन that you will have to take care कि when you come across any chemical acids, bases or salts, okay, so as long as you are suggested or advised to taste it, तब तक तुमको उसको टेस्ट नहीं करना है ना. हम हर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन बी पॉइजनस एंड दे कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. ओके, सो टेबल 5.1 में से लेमन जूस है, टेस्ट करो. उसका टेस्ट कैसा आता है? सार, खट्टा आता है, बिटर, कड़वा आता है, मीठा आता है, कैसा आता है? दैट यू विल हैव टू मेंशन. ऑरेंज जूस कैसा होता है? विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? दैट यू कैन टेस्ट इट एंड राइट द कि हाउ इट टेस्ट. Now see, you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Okay, now 5.1 acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour, है ना. ये सब खट्टे खट्टे टेस्ट में होते हैं. These substances taste sour because they contain acid. So this is one property, or you can say characteristic of acid. Acids always sour in taste. Okay, the chemical nature of such substances is acidic. The word acid comes from Latin word acere, which means sour. The acids in these substances are natural acids, है ना. जो हम चीज़ें खाते हैं अपने फूड में, जो हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटोज़, ओके, सो उन सब में जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सार? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो क्या तुम लोगों ने बेकिंग सोडा टेस्ट किया है? वो क्या खट्टा होता है? नहीं, उसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है. सो दैट मीन्स वो एसिड नहीं होता है. ओके, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट. इट इज़ बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा सा होता है ना टेस्ट में. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट फील्स सोपी. Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. Okay, so here we have been given, or we have been come across two basic characteristic of bases, that is वो bitter होते हैं taste में, और दूसरा it feels soapy. Okay, the nature of such substances is said to be basic. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? है ना. मैंने अभी बताया कि हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसका कैसे नेचर कैसे हम पता लगाएंगे कि येस इट इज़ एसिड और बेस और सॉल्ट. ओके, सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. These substances are known as
इंडिकेटर्स। हम उसको इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमको इंडिकेट करते हैं कि अ पर्टिकुलर दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। ओके, दैट्स व्हाई वी call them indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals are some of the naturally occurring indicators. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल का फूल है ना। तो टर्मरिक हल्दी, अगर तुमने कभी देखा होगा कि सपोज़ तुम्हारे किसी कपड़े पे हल्दी लग जाती है और तुम उस पर अगर डिटर्जेंट लगाते हो, सोप लगाते हो, तो वो रेडिश हो जाता है ना। व्हेन इट कम्स टू हमारा सोप क्या होता है? Actually soap is basic in nature. It has baking soda. You can say it has baking soda, so that's why it is basic in nature. So when it reacts with the turmeric, it gives red color. Okay, तो जितने भी हमारे naturally occurring substances indicators हैं, they give different colors with different acid, bases and salts. Okay, now on page number 50, a table has been given. It is showing name of the acid found in different substances. Okay, अब देखो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, दे ऑल आर नॉट सेम, है ना। लेमन जूस में अलग एसिड होता है, विनेगर में अलग एसिड होता है। ओके, सो ये टेबल दिया हुआ है विच यू विल हैव टू सी। उसमें क्या है कि नेम ऑफ द एसिड एंड नेम ऑफ द बेस गिवन एंड विच इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। सपोज देखो फर्स्ट क्या है हमारा विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एंट स्टिंग मतलब जब एंट काटती है, चींटियाँ काटती है, तो उसकी स्टिंग होती है ना, जो डंक होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। फिर सिट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनच जो ऑक्जेलिक एसिड है बेटा, वो टोमेटो में भी होता है। ओके, सो नाउ एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे मैंगोज। ओके, एक्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स दिस टेबल इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इसमें से काफ़ी तुम्हारे MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसको तुमको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज इन विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ वी विल सी 5.2 natural indicators around us. First we will discuss about litmus. Litmus is a natural dye. The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. Okay, lichen is a small plant. It is a variety of plant only. It has a mauve purple color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to basic solution, it turns blue. अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो हमारे नेचुरल डाइज हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उन सब के डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ दैट इंडिकेटर उनके कलर्स चेंज होते हैं, है ना। दे ऑल आर डिफरेंट, दे रिएक्ट डिफरेंटली विद एसिड एंड बेसिस। से लिटमस में क्या है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट टर्न्स रेड, और जब ब्लू के साथ बेसिक के साथ होता है तो इट टर्न्स ब्लू, विच इज़ नॉट अकर इन केस ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक हमारा क्या होता है? बेस के साथ रेड होता है। ओके, now it is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Okay, हमारे स्कूल में भी है लिटमस पेपर विच आई वॉन्टेड टू शो यू।
लेकिन आई विल जस्ट सेंड यू द पिक्चर कि वो कैसा दिखता है ना। लिटमस पेपर होता है, जब तुम उसको एसिड में डालते हो तो इट टर्न्स रेड, और अगर तुम बेस में डालोगे तो जो वो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। ओके, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। वो रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है। ओके, रेड जो होगा अगर बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड में गया तो रेड हो जाएगा। तुमको ये याद रखना है, लिटमस एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में ब्लू हो जाता है। ओके, सी आई हैव गिवन यू वन टेबल जिसमें कि तुमको ढेर सारे सब्सटेंसेस दिए हैं एंड इफ़ेक्ट ऑफ लिटमस ऑन दैट सॉल्यूशन। ओके, सो तुमको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है बेटा। ओके, देखो पहला क्या है, लेमन जूस। अगर वो रेड लिटमस पेपर पे कैसा होगा, नो चेंज, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि अगर एसिड के साथ लिटमस पेपर रेड वाला अगर हम यूज़ करते हैं तो it always be red in color, है ना, तो it will give no change. But when we put blue litmus paper in the lemon juice it turns red. So इसका मतलब क्या है, it is acidic. ठीक है, so in this way we can find out कि whether our solution is acid or base, but for that you should know that which type of indicator you are using and what color it is showing when you are inserting the indicator in a particular solution. Okay, now we will see page number 51. Activity 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler or test tube. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper. तुमको क्या करना है, लेमन जूस को एक प्लास्टिक में लेना है, लेमन जूस थोड़ा सा पानी मिला करके, फिर उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप तुमको लिटमस पेपर पे डालना है. इज़ देयर एनी चेंज? अगर हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला है तो क्या कोई चेंज आएगा? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Okay, if you wish to do this activity you can do, and litmus paper is commonly available in the market. Okay, and it is very cheap and reasonable in price, so that you can buy it and you can taste different things available at your home. Okay, now see, perform the same activity with the following substances: tap water detergent solution, aerated drink मतलब soda, okay, cold drinks, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda. Means तुम अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम by using this red and blue litmus paper you can easily indicate that whether a given thing or the thing which you are testing is acid or basic in nature. Okay, record your observation as in table 5.2. In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. Okay, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो तुम्हारा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों कोई कलर शो नहीं करेगा. ओके, इट विल नॉट शो आइदर रेड, नाइदर रेड और नॉर ब्लू. तो वो क्या होगा, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. सो जो भी अगर ये एक्सरसाइज करता है प्लीज़ डू मेल मी. ओके, it will be very good for you to do this activity. Okay, it will give you more information about acids, bases and salt in your real life. Okay, you can see in your real life only. The solution which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solution. Neutral मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होता उस पर, है ना. अगर हमसे कोई बात करता है, बहुत हमको गुस्सा दिलाता है, बट हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम कोई रिएक्शन ही नहीं देते, तो हम क्या है, न्यूट्रल है, पीस है. वैसे ही हमारे सॉल्यूशंस भी होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि जो व्हेन वी यूज़ लिटमस पेपर तो वो ना तो रेड शो करते हैं ना ही ब्लू शो करते हैं. ओके, तो क्या है, मीन्स दे आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, दे आर न्यूट्रल इन नेचर. These substances are neither acidic nor basic. Okay, now turmeric is another natural indicator. So
सो हियर वी विल सी कि टर्मरिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी ईजी दिस एक्टिविटी 5.2 you can do at your home, and I want all of you conduct this activity and send me the video that how you have performed this activity. okay, मुझे सबका मेल चाहिए, वीडियो चाहिए. देखो, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. टर्मरिक पाउडर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक थिक पेस्ट बना लिया. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट. तुम ब्लॉटिंग पेपर नहीं तो फिल्टर पेपर ले लो और उस पर वो टर्मरिक का पेस्ट अच्छे से लगा दो और उसको सुखा दो. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, फिर उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. अब उस पर एक सोप सॉल्यूशन, मतलब तुम थोड़ा सा डिटर्जेंट घोलो या फिर सोप को हल्का सा पानी में मिक्स करो और उसका सॉल्यूशन एक ड्रॉप तुम उस टर्मरिक स्ट्रिप पे डालो. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमको क्या दिखेगा, दैट आई वॉन्ट टू नो. ओके, कि तुमको क्या दिखता है. तो अगर तुम वीडियो बनाओगे उसका अच्छे से, सो इट विल बी ईजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि येस यू हैव डन. ओके, नाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम इनटू इट. लाइम वाटर एंड लेमन वाटर, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, है ना. डोंट मिक्स देम. देखो, जैसे कि लेमन वाटर है हमारा, लेमन जूस मीन्स नींबू पानी, और लाइम वाटर मतलब चूने का पानी. चूना होता है ना, वाइट वॉश होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. स्टर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर. तुमने घर में पेंटिंग होता है तो पापा पहले कराते हैं ना वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग मीन्स वो हम लाइम वाटर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सी पेज नंबर 52. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. है ना. अगर हम टर्मरिक लगाया एक शीट पर, उसके बाद हम सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ना बेटा, तो क्या कलर आता है, यू विल सी, बहुत बहुत ही प्यारा कलर आता है, रेड कलर, है ना. तो तुम उसे ग्रीटिंग कार्ड. सी टेबल 5.3. डिफरेंट सब्सटेंस हैज़ बीन गिवन एंड यू हैव टू चेक कि व्हाट इफेक्ट इट इज़ शोइंग ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन. इफ द कलर टर्न्स इनटू रेड, then that means the given solution is basic in nature, just opposite to the what we were doing, we were indicating in litmus paper, है ना. हम लिटमस पेपर में क्या कर रहे थे, अगर लिटमस पेपर रेड होता था, है ना, तो हम बोले थे कि yes that substance is acidic, but it is not true in case of टर्मरिक सॉल्यूशन. अगर टर्मरिक सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं और रेड कलर आता है, दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज़ बेसिक इन नेचर. ओके, और अगर वो कलर कोई कलर नहीं शो करता है, इट रिमेन्स येलो इन कलर, सो दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज़ बेसिक इन नेचर. ओके, सो 5.3 तुम आराम से कर सकते हो और मुझे सबका आंसर चाहिए. ओके, ठीक है. नाउ सी चाइना रोज एज इंडिकेटर. चाइना रोज गुड़हल का फूल, है ना, हिबिस्कस सबके घर में लगा होता है. आई हैव आई हैव गिवन यू अ पिक्चर ऑफ गुड़हल का फूल. ओके, चाइना रोज का जो पेटल्स है वो हम यूज़ करते हैं टू मेक द इंडिकेटर. कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर. एड सम वार्म वाटर. ठीक है, बीकर में पेटल्स लो, उसके पंखुड़ियाँ लो और उसमें गर्म पानी डालो. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. एड 5 drops ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4. तो ये भी बहुत ईजी है, तुम घर पे आराम से बना सकते हो चाइना रोज़. ठीक है, तो बेटा कौन कौन सी एक्टिविटी तुमको घर में परफॉर्म करनी है. Activity 5.2 and 5.3, and you will have to make the video of it
एंड यू विल हैव टू शो कि क्या ऑब्जर्वेशन तुमको मिलता है, ठीक है। आई होप यू ऑल विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड मेड इट टू मी। सी टेबल 5.4 में हमको डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं। यू विल हैव टू सी कि पहले उसका कलर क्या था। शैम्पू सपोज अगर पहले तुम्हारा वाइट कलर का था और जब तुम उसमें चाइना रोज इंडिकेटर उसमें यूज़ करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, दैट यू विल हैव टू राइट। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink, magenta. Okay. अब यहाँ पे देखो चाइना रोज में एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हम सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर एंड व्हेन इफ यू वी आर पुटिंग चाइना रोज इंडिकेटर इन दैट, सो इट विल टर्न इन डार्क पिंक कलर, ओके। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। देखो बुझू क्या बोल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तो देखो कभी भी क्या होता है कि कोई चीज़ें जो होती हैं वो हमको अगर वो सॉलिड ड्राई स्टेट में हो तभी भी हमको वो थोड़ा सा रिजल्ट देती है, बट इट इज़ बेटर कि अगर तुम उसका सॉल्यूशन यूज़ करो, लिक्विड स्टेट में यूज़ करोगे तो यू विल गेट दी बेटर रिजल्ट, ओके। नाउ पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल, ओके, फॉर यू। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। तो कॉफ़ी ब्राउन होता है और बिटर कड़वा होता है टेस्ट में, तो वो एसिड है कि बेस है? तो हमेशा तुम क्या करो, अगर बिटर इन टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेसिक ही होगा, तो क्या करना है हमको, कॉफ़ी पाउडर का सॉल्यूशन बनाएंगे, देन वी कैन यूज़ एनी of the given indicator. You can use litmus paper, you can use turmeric or China rose indicator to see if the coffee is acidic or basic in nature. Now see activity 5.4. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. Okay, now they all are chemicals. इसमें से कुछ एसिड्स हैं और कुछ बेस हैं। तो अब हमको क्या करना है, टेबल 5.5 में we will have to check these given chemicals by using litmus paper, turmeric paper and China rose. And then we will have to observe the color, ठीक है। तो ये हम तब कर सकते हैं when you come to school. Now see page number 54. Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain, है ना। acid rain means जब बारिश होती है विच कंटेन्स जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमोसफेयर में होते हैं, तो दे गेट मिक्स विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन एंड इट कम्स डाउन। और वो जब क्या करते हैं, व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द मॉन्यूमेंट्स ग्राउंड, तो वो क्या करते हैं, उनको हार्म करते हैं, ओके। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, है ना। They are the pollutants and they are the main composition of acid rain. They dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट डेंजरस एसिड्स, carbonic, sulfuric and nitric acid. And the acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. Okay, now see caution. Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin.
तो जो हमारे नेचुरल एसिड्स थे, येस दैट वी कैन हैंडल, लेकिन जो केमिकल होते हैं हमारे विच वी यूज़ इन लेबोरेटरीज, सो दैट केमिकल्स वी हैव टू हैंडल विथ अटमोस्ट केयर, है ना, क्योंकि अगर उसका थोड़ा सा भी स्पिलेज होता है हमारे हाथ पर या फिर कहीं पे, सो इट इज एज दे आर कॉरोसिव इन नेचर, तो क्या कर सकते हैं, वो जला सकते हैं हाथ को, इट कैन हार्म यू। तो इसीलिए हमको वो बहुत ही केयर के साथ वी शुड हैंडल दी chemicals in the laboratory. Demonstrate the effect of the three indicators on each of these solutions. Record your observation in table 5.5. So the table which is given in on page number 53, उस पे तुमको ये सब acids को check करना है by using the three given indicators, and then you will have to write कि yes about this given substance is acid or basic in nature. So far we have discussed about acid and base. Now we will see what do you mean by neutralization. Neutral, है ना. We have learned that acids turn blue litmus red and base turns red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. तो phenolphthalein it is also an indicator. अब वो कैसा इफेक्ट करता है एसिड पे? It remains colorless when you put phenolphthalein indicator in the acidic solution. But when you mix this phenolphthalein indicator in basic solution, the color changes into pink. Okay, now see activity 5.5 to be demonstrated by the teacher in the class. So मतलब ये class में ही हो सकता है, because here we are dealing with the chemical. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Hydrochloric acid हमने test tube में लिया. Note down its color. Color कैसा है that we will have to note down. Now note down the color of the phenolphthalein solution also. ठीक है, हमको दोनों का कलर इनिशियल कलर हमको नोट करके रखना है, सो दैट वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इन द इनिशियल एंड फाइनल कलर ऑफ द phenolphthalein and hydrochloric acid. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? Add to the acid solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. तो देखो phenolphthalein को हमने जब एसिड में डाला तो कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ, बट अगर हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल द हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेस. ओके, ये याद रखना, ऑल द हाइड्रोक्साइड्स आर बेस. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add one drop of sodium hydroxide. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color, है ना. तो phenolphthalein अगर हम यूज़ करते हैं एसिड में तो वो कलरलेस हो जाता है, बट अगर हम phenolphthalein बेस में यूज़ करते हैं तो it becomes pink in color. It is evident that when a solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. Now see page number 55. When an acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. है ना, हम मैथ्स में करते थे इंटीजर्स में +1 -1 इट विल कैंसल आउट टू गिव यू 0, है ना, दोनों कैंसिल होते थे. वैसे यहाँ पे भी क्या है कि व्हेन यू मिक्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसिड इनटू बेस, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कैंसल आउट हो जाती है और दे बिकम न्यूट्रल इन नेचर.
The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब होगा वो गर्म हो जाएगा, है ना. व्हेन यू मिक्स एसिड विद बेस तो टेस्ट ट्यूब जो गर्म होता है. क्यों? बिकॉज इन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस हीट इज प्रोड्यूस्ड. वो हीट निकलता है उसके अंदर से. द इवॉल्व हीट raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction a new substance is formed and this is called salt. सॉल्ट हमारा कैसे बना होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. हमारा जो कॉमन सॉल्ट है विच इज़ यू कैन से केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम हमारा एसिड मेटल होता है और क्लोराइड हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है. दोनों मिक्स होकर बनाते हैं सॉल्ट. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as the follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. So, this reaction is important. Means when you mix acid and base, तो उसका product क्या होना चाहिए? Salt and water with the evolution of heat. Now the following reaction is an example. When you add hydrochloric acid in sodium hydroxide, तो क्या बनाता है वो? Sodium chloride which is common salt with water H2O. Okay. Bujju added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर है, लाइम वाटर तो खुद ही एसिड है ना, तो हम उसमें मिक्स करेंगे तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं. ओके. नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हम एवरीडे अपने लाइफ में कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, दैट वी विल सी द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ. Indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food as you have learnt in chapter number 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful, है ना. हमको बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है, तो that is the result of indigestion. To relieve indigestion we take an antacid such as milk of magnesia. डाइजीन हम पीते हैं ना, डाइजीन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ अ बेस. तो अगर हमारे बॉडी में जाता है तो इट कैंसल आउट द effect of hydrochloric acid which is present in our body and they neutralize themselves and to neutralize the effect of hydrochloric acid which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. Ant bite. When an ant bites, it injects the acidic liquid, that is formic acid, into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट. जहाँ जहाँ केमिकल नेम आया है बेटा दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, वो टेस्ट में आएगा ही. और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट. ओके. जब तुमको चींटी काटती है तो क्या होता है? रेडिश हो जाता है, वहाँ पे रेड रेड हो जाता है और थोड़ा स्वेलअप हो जाता है. तो उस इफ़ेक्ट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रब बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना सॉइल में तो सॉइल क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है. फिर उसमें प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. प्लांट को भी क्या है? बिल्कुल नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ज़्यादा एसिड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेस भी नहीं होना चाहिए सॉइल में. देन ओनली द प्लांट कैन ग्रो प्रॉपरली. तो हम क्या करते हैं उसके लिए? व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, और slaked lime, that is calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter, the compost is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. Now factory waste. The waste of many factories contains acids. If they are allowed to flow into water bodies, the acid will kill fish and other organisms, है ना. As the acids are corrosive in nature, तो क्या करेंगे वो?
फिशेज, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो they can kill. Okay, they are having the ability to kill the aquatic animals. तो इससे the factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. Okay, हम excessive जो bases होते हैं उसको भी कैसे counteract कर सकते हैं उसके effect को, by using acid. और अगर ज़्यादा acid होता है तो उसमें हम base मिलाएंगे तो उसका effect हम neutralize कर सकते हैं. ठीक है, तो जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है, do perform at home and send me the video in my mail. Okay, so I hope you have understood this chapter. Read the chapter carefully and prepare for the quiz which I will take in the evening. Okay.